student, hello everyone and welcome to the board Adda. Today we are beginning with your new chapter of your class 9th geography textbook, that is your chapter 1 India size and location. In this chapter we are going to deal with mainly the India's location, whether we talk in the context of globe or world map, where the India is located, in which hemisphere, northern or southern hemisphere the India is located, and what is the size of India, whether we talk in the context of latitude or longitude. Okay, so in this chapter we are going to discuss your NCERT chapter 1 from geography class 9th book. Line wise explanation we will focus also, and we will discuss some core concept of geography or the some core concept which are related, which are mainly going to deal with this chapter. So beginning with the chapter, let's start with some of the important concepts which you are going to get while reading all this chapter. So just focus on what I am going to tell here. आप लोग थोड़ा सा फिगर पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत अच्छी आर्ट मेरी है नहीं, बस समझने की कोशिश कीजिएगा. लुक, फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी अ सिंपल अप्रोच, फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी easily or you can say that making it simple, making in simple language and making it very easy for everyone to understand. The geographers or the scientists who basically are associated with the geography and astronomers, they came with the concept, various concepts which are mainly, when we are talking in geography, they are mainly इमेजिनरी. मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो रियल में नहीं होते हैं, वो बहुत बारी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होते हैं. तो यही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ डील करने जा रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से रिलेटेड. इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक ना. और आप लोग मेरे फिगर पे प्लीज़ मत जाइएगा क्योंकि मेरा फिगर उतना अच्छा है नहीं. हाँ, मेरा फिगर मतलब ये जो हम बना रहे हैं उस पर जाइएगा, वो वाला मत समझिएगा. देखिए ये 0 डिग्री जो ये लाइन होती है, इसको ये 0 डिग्री की लैटिट्यूड होती है. पहली बात बता दें, जो लाइन ग्लोब या अर्थ पे हम लोग वर्टिकल रूप में देखते हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस, इनको हम लोग इक्वेटर के पैरेलल्स भी कहते हैं. दीज लाइंस आर रिफर टू एज लैटिट्यूड्स. इन लाइंस को ही हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक. इन लाइन को हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक. एंड ये जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड होती है, इस लाइन को इक्वेटर कहा गया है. द लाइन विच इज पासिंग वेरी सेंटर, वेरी मिडिल ऑफ द अर्थ इज नोन एज द इक्वेटर, एंड दिस लाइन इज ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड. ओके, and the just you are seeing this line above the latitude, this lines, this above the equator, this line is of 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ये लाइन को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड द लाइन दैट यू आर सीइंग हियर, दिस इज द आर्कटिक सर्कल. दिस इज 66.5 degree north, and the line that you are seeing just below the equator, this is the 23.5 degree south latitude. This we call as the tropic of Capricorn. इसको हम लोग tropic of Capricorn कहते हैं. And the line that you are seeing below the tropic of Capricorn, this line is refers to as the Antarctic circle. Antarctic circle, and same as this latitude is 66.5 degrees south latitudes. Okay, talking about the how we are talking about the northern and north and south. So आप यहाँ पर तो थोड़ा सा फिगर हो गया है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ आइए और इस यहाँ पर भी समझने की कोशिश कीजिए. देखिए ये जो लाइन है 20 से अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है. अपर पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the lower part is known as the southern hemisphere. And the numbers of latitudes which are in the northern hemisphere, we find the 90 numbers of latitudes, means in northern hemisphere 90 latitudes, numbers of lines which are generally drawn in the northern hemisphere and the southern hemisphere when we are talking about the globe. Okay, globe is nothing but it is the small or the geographical model of the earth for making the study of geography effective and easily. Okay,
तो ये ग्लोब होता है, एक स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ ही होता है, ठीक। और 90 डिग्री 90 नंबर्स ऑफ लाइंस आर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो द टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स विच आर we can draw or which generally drawn on the earth is 180. numbers of latitudes are 180. okay, तो अभी हम लोग को क्या क्लियर हो गया है, लैटिट्यूड्स। अब हम लोग जब फर्दर पढ़ते चलेंगे तो हम लोग और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। एंड दे आर मेनली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दिस टॉपिक ऑफ कैंसर दैट यू सी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू you have some question from this topic of cancer कि topic of cancer कैंसर जो है वो किस स्टेट्स, इंडिया के किस स्टेट से होके गुजरता है। तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम MTWRJCM। M फॉर मेघालय, M फॉर मेघालय एंड T फॉर त्रिपुरा एंड W फॉर, सॉरी दिस इज नॉट मेघालय, डाउट था लेकिन हाँ ये मिजोरम होगा, ओके। एंड दिस इज त्रिपुरा, दिस इज W स्टैंड फॉर यू नो ओनली वन स्टेट इन इंडिया विच इज स्टार्टिंग विथ W, वेस्ट बंगाल। एंड R फॉर यू नो राजस्थान, J फॉर झारखंड, C फॉर छत्तीसगढ़, एंड look M फॉर महाराष्ट्र। These all are the states from where the you know the tropic of cancer passes from. M for Mizoram, T for Tripura, W for West Bengal, and R for Rajasthan, J for Jharkhand, C for Chhattisgarh, M for, okay, this is not Maharashtra, M is going to be your MP, sorry, Madhya Pradesh, just a confusion, but आप लोग इसको दूर कर लीजिएगा। This is your मध्य प्रदेश, not महाराष्ट्र। एंड R you know as RJCM G होगा एक, यहाँ पर गुजरात से भी पास करती है लाइन। इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग मत जानिएगा, क्योंकि देखिए जब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन जैसे मगरमच्छ हिंदी में काफ़ी है, मगरमच्छ ने झपटा, लेकिन उसमें आप जब जाएंगे तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए अभी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक में बताने की कोशिश की तो कितना कन्फ्यूजन हुआ। तो एक बारी आप लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप बना पाते हैं तो उससे आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। हालांकि इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें यूपीएससी लेवल या जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तभी पूछी जाती है, आपको उतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, but as a student when you are reading this chapter, when you are in the class 9th studying in CBSE board, you must be aware of all these concepts, all these topics. Okay, so beginning with your chapter, India is one of the ancient civilization in the world. As all of you know कि जो हमारा इंडिया है कोई कल का बना हुआ देश नहीं है। It is very old and it passes from many civilization. For example, when we talk about the earliest civilization in the context of Indian history, we came to know about Indus Valley civilization, IVC, that is Indus Valley civilization. So India is not a country which was born yesterday. It is a very ancient country. ये बहुत ही प्राचीन देश है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. And after the, you can say, after the freedom, after the independence, India has achieved many growth in many forms. That is said it is the multifaceted socio-economic decades. इकोनॉमिक प्रोग्रेस कि हाँ, चाहे वो आप सामाजिक स्तर की बात करें, चाहे इकोनॉमिक, चाहे आर्थिक विकास की बात करें, तो भारत जो है वह इन सब क्षेत्रों में मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट किया है, मल्टीफेसेटेड प्रोग्रेस किया है। अगर आप पिछले 5 दशकों की बात करें तो इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड, whether it is the development in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has developed a lot if we talk about the decades, the 5 decades. So here we came with the word decades. जो लोग बच्चे नहीं जानते हैं वो जान ले, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डिकेड्स होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर,
10 साल के, इसीलिए इसको हिंदी में दशक कहते हैं। 10 साल का जो समय अवधि रहती है उसको डिकेड कहा जाता है। सेंचुरी आप लोग अवेयर होंगे, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के समय को सेंचुरी कहते हैं। मिलेनियम 1000 साल के समय को कहते हैं। जब 1000 ईयर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं। ठीक, तो दिस इज रिलेटेड टू द यू नो सम टाइम कॉन्सेप्ट। सो अगर आप 5 दशकों की बात करें तो इंडिया ने, यद्यपि कि ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, it is not a country which was born yesterday, it has a very ancient civilization and very ancient history. So after all this, after the independence, India also have achieved the multifaceted, whether when we talk about in the field of social progress or economic progress, India has came a lot of, and whether in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development, we find lot of or significant growth of this country by making a lot of contribution in world history to और world diaspora level पर भी हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। और पिछले कुछ दशकों, 5 दशकों की बात करें तो भारत काफ़ी तरक्की किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या इंडस्ट्री के फील्ड में हो। इंडिया हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड टारगेट। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, कोई छोटा मोटा तो देश नहीं है। एंड अगर ये बात करें तो देखो हमने ये डिवीजन किया था ना कि दिस इक्वेटर डिवाइड्स इंडिया, डिवाइड्स वर्ल्ड इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया यहीं कहीं पर साउथ ईस्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये बीच से ये जो हमारी कंट्री है ये इंडिया है। सो अगर आप इसकी बात करें तो इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो इंडिया की क्या है, अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ द मेन लैंड विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड लॉन्जिट्यूड इसकी है 68 डिग्री 7 एट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। वर्ल्ड मैप पे अगर आप खोजने जाएंगे इंडिया को तो यही कोऑर्डिनेट्स अगर आप सर्च करेंगे, इफ़ यू टाइप दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन the Google, you will find a country named with India. Here you can find here from this world map, this figure, you find that this is the equator, this is the line, and it divides the whole world into two, that is the northern hemisphere and southern hemisphere. And in this northern hemisphere हम लोग देख पा रहे हैं कि इस northern hemisphere में ही हमारी जो कंट्री है वो इंडिया ये लाई कर रही है, यहाँ देख पा रहे हैं। एंड हाँ देखिए, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर फर्दर पढ़ते हैं। देखिए हमने अर्थ पे तो एक लाइन बता दी जो पैरेलल जाती हैं इक्वेटर के। अब अर्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ की गई हैं। जो अर्थ का हम लोग ग्लोब फिगर लेते हैं या हम लोग जो वर्ल्ड मैप लेते हैं उस पर हम देखते हैं कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ की गई हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए 0 डिग्री का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन के रूप में कंसीडर करते हैं। और ये लंदन के पास एक ग्रीनविच शहर है, वहाँ से होके गुजरता है। दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस वी रिफर टू एज लॉन्जिट्यूड। हम लोग इनको लॉन्गिट्यूड या लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं। इट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, वेदर यू प्रोनाउंस लॉन्गिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप जानिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पर, उसे लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। और ये लॉन्जिट्यूड्स देखो ये सेमी सर्कल्स होती हैं, इट इज़ नॉट कंप्लीट सर्कल। हम लोग जब लैटिट्यूड की बात किए थे तो लैटिट्यूड्स ऐसे जाती हैं फिर वो कंप्लीट हो जाती हैं, फुल सर्कल्स होती हैं, लेकिन दीज आर सेमी सर्कल्स। एंड अगर इनकी नंबर्स की बात करें तो ये जो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है इसके इधर ये 180 रहती हैं और इसके इधर ये 180 रहती हैं। तो दिस कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 360। वी फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्जिट्यूड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड मैप। सो 360 नंबर्स ऑफ लॉन्जिट्यूड दैट आर प्रेजेंट देयर। ओके, फर्दर मूविंग, ये देखिए लॉन्जिट्यूड का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। और ये इसको हम लोग ये जो है GMT ग्रीनविच GMT टाइम के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड 24 आवर की वॉच जो चलती है ना 24 घंटे की, वो इसी GMT पर बेस्ड होती है। ठीक, एंड फर्दर
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऊपर गया ना, द टॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था। ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है विच इज नेदर बट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो डिवाइड करता है हमारी कंट्री को, लगभग हमारे भारत को ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 23 डिग्री का लगभग यहाँ से होके गुजरा है, तो लगभग जो है भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, द साउथ इंडियन साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइड। और अगर आप बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का अगर आप ऐसे इंडिया को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा फिगर पे मत जाइएगा, तो इस साइड अगर हम देखते हैं तो हमको लक्षद्वीप आइलैंड दिखते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। एंड इधर हम लोग देखते हैं एट द ईस्ट साइड एंड एट द बे ऑफ बंगाल साइड वी फाइंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमको इधर ये देखने को मिलता है। अगर आप बात करें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडियन टेरिटरी का, ये जिसको इंडियन यूनियन का जिसको इंदिरा पॉइंट किया जाता है। 2004 में सुनामी आई थी साउथ साइड, जिसमें चेन्नई वगैरह काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो उसमें ये जो इंदिरा पॉइंट होता है वो समुद्र में सबमर्ज हो जाता है, मतलब उसमें डूब जाता है। अब देखिए बात करेंगे अगर लैंड मास के जो इंडिया का साइज है, अगर आप एरिया वाइज करेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये चीज़ बता देते हैं। अगर आप न्यूमरल सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको अवेयर होगा। इन द क्लास 8 यू हैव केम अक्रॉस विद न्यूमरल सिस्टम, और इन द क्लास 6 और 7, ओके। And this area that is covered by the India, that is 3.28 million square kilometer, it is the 2.4% of the total geographical area that the earth है। ये उसका 2.4% हिस्सा है जितना भारत जो है, भारत की जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है उतनी है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अगर बात करें तो उसमें है, एंड उसका जो परसेंटेज वाइज है वो 2.4% है, 2.4% है टोटल ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एंड इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री फ्रॉम द फिगर। अगर आप फिगर से देखे होंगे तो जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की ना। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड। अब इसकी लैंड बाउंड्री, अगर ये देखिए एक फिगर होगा आगे, उससे समझाते हैं, आप पूरा उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एरिया वाइज देश है वो रसिया है, कनाडा है, फिर उसके बाद यूएसए है, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। सो वी फाइंड दैट 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया वाइज इन द वर्ल्ड इज इंडिया, एंड नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले सेकेंड नंबर पे होती थी चाइना के बाद, लेकिन अब सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड में है कोई तो इंडिया है, एंड एरिया वाइज इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप देखिए एक फिगर से समझिए, अगर आप इस फिगर को नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट कंसीडर करते हैं और इसको एक कंट्री मान लेते हैं इंडिया, ठीक। तो जो इसकी कोस्टल बाउंड्री होती है इंडिया की, ये कोस्ट नीचे की जो बाउंड्री होती है कोस्टल, कोस्ट इज समथिंग द रीजन सराउंडेड बाई वाटर। वाटर से जो एरिया घिरा रहता है, रीजन घिरा रहता है, उसको कोस्ट बोलते हैं या कोस्टल। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर्स की है, ओके, इंक्लूडिंग द मेन लैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द लैंड बाउंड्री, व्हाट इज द लैंड बाउंड्री इंडिया, दैट मतलब जो लैंड, मतलब जो बाउंड्री जो पानी के साइड नहीं है, तो टोटल लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है 15,200 किलोमीटर्स की है, 15,200 किलोमीटर्स की है। अगर आप ये बात करेंगे तो बेसिकली ये बात हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट साइड, जिधर माउंटेन्स है, और जो लैंड बाउंड्री अदर कंट्री से जो बाउंड्री मार्क होती है वो टोटल 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर की लेंथ है।
अगर आप बात करें तो इधर ही नॉर्थ में जहाँ हम देखेंगे कि बहुत ढेर सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है जिन्हें हिमालयन माउंटेन सिस्टम भी कहा जाता है, जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हैं। अगर आप जैसे बढ़ते जाएंगे साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ये जो माउंटेन्स है वो टेपर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड इंडियन ओशियन। नो, एक्चुअली व्हाट इज सेइंग, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कहता है कि ये क्या कह रहा है, जैसे आप ये इधर से 22 डिग्री और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी कंट्री है वो आपको पतली होती दिखाई चल जाती है अगर आप इंडियन ओशियन तक पहुंचते हैं। तो जो कोस्टल लाइन है अगर आप देखेंगे भारत की, तो नीचे जाके नैरो हो गई है, स्टीपर होने लगी है, टेपर होने लगी है। एंड इट डिवाइड्स द इंडियन ओशियन इनटू 2 सीज, दैट इज अगर वेस्ट की साइड देखेंगे, अगर इस तरफ की बात करेंगे तो ये इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। अगर नीचे की बात करेंगे तो ये इंडियन ओशियन है, टू द साउथ इंडियन ओशियन। ठीक, तो ये कंट्री को ये जो ये हमारा कोस्टल बाउंड्री है ना, वो इंडियन ओशियन को दो भागों में बांट देता है, दैट इज द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड ऑन द ईस्ट वी फाइंड द बे ऑफ बंगाल। एंड note the extent, longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमको कोस्टल लाइन देखने को मिलती है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तक ही हमको जो है जो मेन लैंड बाउंड्री है वो देखने को मिलती है। एंड आफ्टर दैट वी फाइंड दैट कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। एंड मैंने बताया था ना कि जैसे जो मेरिडियन होता ही है, मेरिडियन जो 0 डिग्री की मेरिडियन थी जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा गया, ये हमको जीएमटी के रूप में जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड है। तो ठीक उसी तरीके से भारत का भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब 82 डिग्री हाफ ईस्ट जो लॉन्जिट्यूड है जो मिर्जापुर से होके गुजरता है उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लेते हैं, IST के रूप में लेते हैं। दिस इज द ओनली विच पासेस फ्रॉम द मिर्जापुर। ओके, मिर्जापुर नियर प्रयागराज, ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक जो है छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अगर एरिया वाइज बात करेंगे। एंड यहाँ पर विंध्याचल टेम्पल भी है, जो विंध्याचल का टेम्पल है, इसके लिए मिर्जापुर फेमस है। तो यहाँ से होके प्रयागराज के नज़दीक इलाहाबाद जिसको कहा जाता था, वहाँ से होके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जो लैटिट्यूड, देखो ये जो साइंस होते हैं ना, ये डिग्री होता है और ये मिनट होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं। हम लोग जब मैप ड्रॉ करते हैं, जो कार्टोग्राफर हैं, या हम लोग जब ग्लोब की स्टडी करते हैं, तो हम लोग जितनी भी जो पोजीशंस देखते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स देते हैं, उनको एंगुलर डिस्टेंस में मेजर किया जाता है। अब एंगुलर डिस्टेंस जानने बैठेंगे तो आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाएंगे, उसका अलग टॉपिक हो जाएगा। अब आते हैं, और आर्ट्स के टीचर को इतना पता भी नहीं रहता कि वो मैथ वाला इतना कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन आप इतना जानिए कि वो एंगुलर डिस्टेंस होती है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अगर आप बात करेंगे कि जो इंडियन लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन ऑक्यूपाई करता है बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर आप ईस्ट लुक आर कंट्री, देखो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो एशिया कॉन्टिनेंट विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, उसमें लाई करती है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में ईस्ट एंड वेस्ट के बीच की जो सेंट्रल पोजीशन है, यू कैन से मोर ऑफ साउथ ईस्ट, there our land mass India has situated. India is the southward extension of Asian continent, and it is said that India is the साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी नोन एज द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया का साउथ वेस्ट एक्सटेंशन जो है, साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है, वो इंडिया देश कहलाता है। द ट्रांस इंडियन रूट्स जो है वो फैसिलिटेट्स करते हैं या कनेक्ट करते हैं यूरोप को, वेस्ट जो वेस्ट है, एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया। तो ये इसी इंडियन ओशियन रूट से ही हम लोग कनेक्टेड हैं यूरोप से, ठीक। एंड प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो इंडियन ओशियन में इतना इम्पोर्टेंस, इतनी अच्छी स्पेसिफिक पोजीशन है, हमको जो ट्रेड रूट्स हैं जो यूरोप से कनेक्ट करते हैं और ईस्ट साउथ ईस्ट के पार्ट को और वेस्ट के पार्ट को, उसमें हमारा जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितनी भी शिप्स हैं वो इधर ही से होकर गुजरती हैं। सो हमारा जो लोकेशन है इसीलिए कहा गया कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है।
नो अदर कंट्री हैज, एंड बिकॉज इसलिए भी स्ट्रेटेजिक है, क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो हमारे देश भारत की है, उसके अलावा किसी भी कंट्री की नहीं है। दोस्तों अगर आप बात करेंगे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन की वजह से ही ना हमारे देश, हमारा जो ये ओशियन था हमारे साउथ में, उसको इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंस भारत की है, इसीलिए उसको इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है, अगर आपको पता है तो 1869 में एक वाटर चैनल बनाया गया है जिसको स्विस कैनल के नाम से जानते हैं। कैनल मतलब आप नहर मत समझ लीजिएगा, ये मेडिटेरियन सी में एक वाटर चैनल बनाया गया है, जिसकी वजह से जो इंडिया और यूरोप की डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गई है। ठीक, एक फैक्ट जानने लायक था तो बता दिए। अब आपको पता है कि अगर आप मतलब एरिया वाइज जाते हैं तो कौन सी कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है। देखिए एक फिगर है, एक मिनट थोड़ा सा फिगर आ भी जाए भाई। देखिए अगर आप बात करेंगे तो हमने जो कोऑर्डिनेट्स देखे थे, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, देखो 8 डिग्री 4 मिनट हमने नॉर्थ का कोऑर्डिनेट देखा था, फिर उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का कोऑर्डिनेट देखा था ये है। अगर लॉन्जिट्यूडनल कोऑर्डिनेट देखें तो 68 डिग्री 7 है, 97 डिग्री 20। अच्छा आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको लैटिट्यूड कह रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको लॉन्जिट्यूड कह रहे हैं, जबकि आपने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लॉन्जिट्यूड होती हैं और जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो लैटिट्यूड्स है ना, जो लैटिट्यूड्स हैं वो रन या ड्रॉ तो की जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप कह लीजिए, लेकिन ये एंगुलर डिस्टेंस मेजर करती हैं नॉर्थ टू साउथ की। वेयर एज अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूड की तो ये नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की जाती हैं, लेकिन ये एंगुलर डिस्टेंस मेजर करती हैं वेस्ट टू ईस्ट की, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो हेमिस्फीरल जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्शन बताती है, ठीक ना। तो अगर आप बात करेंगे तो जो इसका वेस्ट में जो ये लॉन्जिट्यूड है, अगर आप इधर बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लॉन्जिट्यूड है, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लॉन्जिट्यूड। इतना हमारा जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है हमारे कंट्री की वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई करती है। अगर आप बात करेंगे तो देखिए अगर जो वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच है हमारा वो 2933 किलोमीटर्स का है, एंड वेयर एज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इट इज़ ऑफ समथिंग अबाउट 3000 के लगभग है। तो 32,400 किलोमीटर्स ये जो डिस्टेंस है हमारी नॉर्थ टू साउथ ये 3214 किलोमीटर्स है, मतलब हिंदी में कहे तो 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर आप बात करें तो वही बताया था, देखिए यहाँ पर देखिए वेस्ट में साइड अरेबियन सी है और इधर ही हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड के समूह हैं वो दिखने को मिल रहे हैं। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है और इधर हम देख पा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दो हमारी नेबरिंग आइलैंड कंट्री है जो श्रीलंका है, और इधर आप थोड़ा सा और आते नीचे अगर मैं फर्दर दिया रहता तो मालदीव से, हम यहाँ लिख दिए मालदीव तो वहीं मत समझ लीजिएगा नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो ये रही बात इंडिया के बारे में, इसकी मतलब इसकी लोकेशन क्या है। और फर्दर पढ़ते हैं, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट देखें वर्ल्ड के साथ तो ये एजेस से चले आ रहे हैं, लेकिन इसकी बटा रिलेशनशिप थ्रू द, अगर आप सी रूट्स की बात करें तो ये हाल फिलहाल नया है, लेकिन अगर आप इसकी लैंड रूट की बात करें तो उस हिसाब से अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है वर्ल्ड से, वेदर अगर आप पढ़े होंगे तो सिल्क रूट के बारे में सुने होंगे, जिसे कार्गोज वगैरह जाते थे, जो सिल्क कार्गोज थे वो भारत आते थे और भारत से स्पाइसेस चाइना जाती थी। तो उस हिसाब से
हमारा जो कॉन्टेक्ट था वो बहुत ही पुराना है, लेकिन जो मैरी टाइप कॉन्टेक्ट्स है उससे अगर आप बात करेंगे तो जो लैंड कॉन्टेक्ट है वो बहुत ही पुराना है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स, अगर आपने सुना होगा तो खैबर पास, बोलन पास, ये सब नाम सुना होगा अगर पढ़े होंगे ज्योग्राफी तब क्लास 8 में। तो ये सब पासेस की वजह से हमारी जो इंडिया कंट्री है वो अदर कंट्रीज से पहले से कनेक्टेड थी। हमारे प्राचीन समय में इन एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर इन्हीं रूट्स की मदद से पास करते थे। हमको तो यही पता है ना कि हमारा जो कंट्री है उसको वास्को डी गामा ने खोजा था, जो हमारा वास्को डी गामा जो हमारा सी रूट है उसी ने डिस्कवर किया था। लेकिन कहने वाली बात है, माना जाता है कि वास्को डी गामा इंडियन मर्चेंट की मदद से आया था। तो बहुत पहले जो है हमको पता है कि हमारी जो कंट्री है पहले के समय में जितने किंगडम्स होते थे वो शिप्स वगैरह बनाते थे, शिप बिल्डिंग उनको पता थी, तो वो जानते रहे होंगे रूट्स। ये कहने की बात है कि वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उससे पहले अगर शिप्स वगैरह वो लोग हमारे पूर्वज जो थे उनको पता था, तो शिप तो वगैरह जमीन पे चलाते नहीं, पनिये में चलाते ना। तो ये कहने वाली बात है, इससे वेस्टर्न कल्चर का इम्प्रिंट मानिए आप। तो उसने डिस्कवर किया था, इसको कहा गया गुड ऑफ केप ऑफ गुड होप। इस रूट को कहा गया केप ऑफ गुड होप। ठीक, अगर इसी रूट से कंट्रीब्यूट किया हमने जो आइडियाज, अब इन्हीं रूट से ना केवल हम लोग कमोडिटीज और मटेरियल्स का एक्सचेंज करते थे, इन्हीं रूट से हमारी जो आइडियाज थी, चाहे वो उपनिषद की आइडियाज हो, रामायण की आइडियाज हो, स्टोरीज हो, पंचतंत्र हो। पंचतंत्र आपको पता है पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है, काफ़ी अच्छी जो इसमें स्टोरीज होती हैं उसका एक कलेक्शन है। तो रामायण आपको पता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर लिखी गई जो एपिक है वो है रामायण, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। तो अगर आप बात करें तो जो इंडियाज़ की आइडियाज़ थी, जो इंडियन सिस्टम थे, इंडियाज़ के बिलीफ सिस्टम्स थी, इंडिया की आइडिया थी, वह भी इन्हीं रूट्स की मदद से दूसरे कंट्री में पहुंची हैं। चाहे वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स हो, चाहे डेसिमल सिस्टम्स हो, ये बहुत से पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पार्ट में पहुँचे। चाहे अगर इंडिया की स्पाइसेस प्रोडक्ट की बात करें तो स्पाइसेस मसलिन एक टाइप का फैब्रिक होता है जिससे क्लॉथ बनाए जाते हैं, मर्केंडाइज, ये सब भारत से दूसरे देश में पहुंचे। और भारत में भी बहुत सी चीज़ें आई, जैसे आप ग्रीक इन्फ्लुएंस, इसका ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस देखते हैं, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल वेस्ट में प्रिवलेंट थी, प्रचलित थी, वह यहाँ डोम स्टाइल जो होती है वो वेस्ट में वगैरह में थी, यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं। अगर आप बात करें तो इंडिया जो है साउथ एशिया में, जो एशिया का साउथ पार्ट है उसमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री या कोस्टल बाउंड्री है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया कंट्री की ही है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में। ठीक, हाल फिलहाल के समय में इंडिया अगर बात करें तो वो अपनी लैंड बाउंड्री किस किस देश के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। ठीक, इससे इस साइड जो है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से साथ बाउंड्री शेयर करता है। एंड अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट आर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली, आप जानते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स, जिनको श्रीलंका और मालदीव्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट में ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। अगर आप नॉर्थ की बात करें तो नेपाल है, चाइना है, भूटान है। ठीक, अगर आप ईस्ट की बात करें तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो ये हमारा श्रीलंका है और ये मालदीव्स है, ये आइलैंड नेशंस हैं। अभी आपने देखा होगा तो अगर आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह हैंडल चलाते हैं तो बहुत पहले ये मालदीव्स से काफ़ी वो चल रहा था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने लक्षद्वीप विजिट किया था। तो मालदीव्स की जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे चलती है, मतलब जो टूरिज़्म है उस पे चलती है। तो वहाँ लोग मतलब देखा कि भाई ऐसा मालदीव्स जो छोटा सा देश हो के हम ही को आग दिखा रहा है, तो हमारे भाई जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो गए लक्षद्वीप विजिट कर लिए, तो काफ़ी वो ट्रेंड में था उस समय। तो ये एक नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, मतलब अगर संबंध अच्छे हो तो जाने लायक है, ऐसी बात है श्रीलंका एंड मालदीव्स।
अगर आप बात करें तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो ना, जो श्रीलंका एक नैरो वाटर चैनल से सेपरेटेड है, जिसको कहते हैं पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। ठीक, और हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिसे बैरन आइलैंड पे है, इसको बैरन आइलैंड वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। इंडिया हैज strong geographical and historical link with her neighbors. Look at physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia। ये देखिए आपका होमवर्क भी दे दिया है। ठीक, आई थिंक हमको लगता है अब चैप्टर यहाँ होता है खत्म। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू बीच स्टेट, हमने पढ़ा था राजस्थान से भी पास करता है, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, त्रिपुरा से भी पास करता है, उड़ीसा से नहीं पास करता, तो ये राइट आंसर होगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 33 नहीं, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, हमने यही देखा था ना, यही है जो है यही डिग्री थी जहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ईस्टर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट इंडिया का यही था इस। फिर उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ स्टेट, तो ये नेपाल के साथ है। ठीक, इफ यू इंटेंड टू विजिट करावटी ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग, तो करावती जो है लक्षद्वीप की जो है कैपिटल है, करावती इज द लक्षद्वीप कैपिटल, मतलब यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है वो लक्षद्वीप का करावती है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाइड अ कंट्री, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब शेयर करते हैं लेकिन तजाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करती है। ठीक, अब नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप। ठीक, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, आपको पता है रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये सब कंट्रीज है जो इंडिया से। नेम द आइलैंड कंट्रीज आर सादर्न नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इतने क्वेश्चंस भी करा दिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी सजेशन स्टूडेंट प्लीज़, अगर कोई भी सजेशन रहा करे तो आप लोग कमेंट में पिन किया कीजिए। स्टार्टिंग डेज है तो काफ़ी उतने व्यूज़ वगैरह रहते नहीं हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट देखते हैं, अगर कोई भी उनको सजेशन रहा करो तो वो ज़रूर जो है कमेंट में पिन किया करें, या हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पर बोर्ड अड्डा 21 करके, वहाँ पर भी हमको डीएम कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर सॉल्व की जाए, जो भी डाउट हो सॉल्व किया जाए। स्टार्टिंग फेज़ है, चैनल जब ग्रोथ हो जाएगा, पूरा लगे हुए हैं आप लोग के साथ, आप लोग के सपोर्ट से ही ग्रोथ होगा। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं क्योंकि उतना हमारे पास एडवांस सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ हम अपना बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो हमने इंडिया एंड साइज लोकेशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।